I have taken the review about the paper from my students, from my own students, from my institute students. So from 2:30 to 5:30 there was question, and meanwhile I was sleeping because whole night and day I did not sleep because of students call and all everything. So now the review is the apti part of the paper Gate Aerospace 2023 was very easy. Many of my students, they have completed all 15 out of 15 marks. And in case of core, I will go through subject wise, and after explaining the question paper I will attach the audio file, the call what I was talking to my few students. Those calls I will attach here immediately after this video. So now first you see the my review. Question paper was like you can say moderate level. Some questions were very easy, and some people said that okay, some structural problems were lengthy, but they were doable. You were able to do. In propulsion, you had question from AFC, CFC, AFT. Like propulsion question paper was like kind of the same what we used to teach in the class. Structure paper was exactly the same what we used to teach in the class. So propulsion and structure used to be the major part of for the preparation purpose. So they are actually easy. So propulsion easy, structure easy. I mean easy in the sense, if you are like knowing something that okay, this question is coming from which part, so you will say that okay, it is easy. Now it is your thing, like how to solve, how not, like how to solve, how to approach. There you made a mistake anyway. Calculation error part I'm not considering in the in the question paper review. I'm only saying that some questions are from a particular corner. So those questions, if you know that they are from which corner, it means syllabus is under that syllabus what you have covered in your notebook. So propulsion question was good. So now in propulsion question paper was like question was from turbofan. Someone was saying it was coming answer 12.5 something. Question was there turbofan, turboprop, and AFC, CFC, AFT, and question paper was from ramjet also. I forgot to ask what was the question from the ramjet from the students. And in structure also question was there from elasticity. There question from in that Mohr circle there was question from bending, torsion, vibration, column, MSQ questions. So actually question paper was easy in case of these two, propulsion and structure. Easy in the sense, if you are thinking that paper is lengthy in case of structure, so actually papers questions used to be lengthy almost every year in case of aircraft structure. So main thing is propulsion is good, structure is good. It means question paper is in your favor. Now come to aerodynamics. In aerodynamics question was like some questions were like they were saying the 4 airfoils were there. So question paper was again easy in case of aerodynamics. Question paper was from potential flow also. So people, my students said that actually question paper from potential flow. In aerodynamics we have potential flow. So that question was like kind of weird. They said like a question paper was weird in case of aerodynamics. So that part like because soon I will see the questions also, then I will give the right judgment. Like if your students are saying question paper was weird in potential flow, questions are from here and there. So what the questions actually? So if you guys have done, then you should know actually what. Now if I'll come to there was question from some laws like I think there was question from Kutta condition, Kutta Joukowski. There was no question from lifting line, no question from Kelvin. These questions were not there. I forgot to ask that there was question from NACA airfoil or not. But anyway, what question they have said in aerodynamics, I found that aerodynamics you can say little bit high. Aerodynamics question little bit high after talking to, because I have not seen the question paper yet. Now in flight mechanics question was there. Question paper was there in flight mechanics. 2 questions from climbing, one from gliding, and 2 questions from I forgot to ask takeoff and landing question. So again question paper in flight mechanics also doable question. Till now I know that how maximum questions from my institute like 48 attempt from my institute, maximum attempt till now, and other people are still I'm recording this video exactly at 5:45. So immediately after this some other okay. And engineering mathematics question paper was like weird question paper. Like there was no question from Laplace, there was no question from numerical method. So kind of like it was weird. There was no straight question from integration. There was no basic there was question from linear algebra means matrix. So but in mathematics question paper was weird, like a straight answer from the student, like it was weird question paper from engineering mathematics. And core is like if you will summarize the core, it will be like a moderate to
like moderate plus. You will not say very high tough or something. But I will consider that like in that 3 hours of pressure. Easy question papers used to be moderate, definitely. So definitely in the first attempt, if students are saying question paper was moderate, then I will consider that question paper was moderate at students level. So moderate means definitely your cutoff in general category, I can consider it should go, like my idea, it should go around 29 marks. Cutoff for general category should go for roughly rough idea 29 marks. Cutoff should go, but cutoff may touch uh, 30 30.5. This kind of cutoff may touch in general category if question paper from and one more thing, rocket and propulsion, rocket and space dynamics, super easy question paper. So rocket and, like, because I used to teach rocket everything, so question paper was also again very easy. So like you understand that from every corner what I have taught in the classroom, questions are coming. Only students are claiming that from engineering mathematics they were not having the exact they are not having good review about engineering mathematics. So in OBC category and SC/ST category, I am not able to declare the cutoff now. But after talking to students, it seems like 29 marks will go for cutoff for general category. And if students from general category, if they will do engineering mathematics also all correct, then cutoff will go high, and then it may go 30 plus cutoff, like 30.5, like this cutoff may go. Okay, now I'm attaching the audio call, and you listen the entire audio call, and thank you all of you for continuously being my audience on my YouTube. And okay, now I'm attaching the file, and best of luck, and you have a very good future. हेलो हेलो वेदांत, एग्जाम कैसा हुआ? सर, एग्जाम तो मेरे ख्याल से तो मॉडरेट लेवल का था। Okay. मेरा एफटी में हो पाया। एफटी में मुझे समझ में नहीं आया तो कुछ क्वेश्चन हम्म, 1-2 ही मार्क्स किया मैंने एफटी में, बाकी में क्योंकि अगर मैंने ऐसे किया तो फिर नेगेटिव फोकस का नेगेटिव चला जाएगा ना इसलिए। ओके। और और स्ट्रक्चर्स का एकदम मस्त क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्स का हुआ इस बार। हम्म, स्ट्रक्चर्स का सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, मतलब कंपेयर करना था कि एक हॉलो सर्कुलर ट्यूब था। हम्म, हॉलो सर्कुलर ट्यूब में मतलब मैक्सिमम वो लग रहा था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वो वैल्यू फाइंड करनी थी। और एट मतलब जो वॉल था ना, मतलब अपना 3 वॉल सेक्शन, उसके केस में वही सेम बीम पे हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड करना था, उन दोनों का रेशियो निकालना था। सर Okay. वो थोड़ा टफ था, पर बहुत लेंदी था वो। हाँ, ये लेंदी है लेकिन हो जाएगा, इजी है, ठीक है। हाँ, मेरा आंसर परफेक्ट 1.2 आया, मेरे को याद है। ओके, और ग्रेट। उसमें पूछा था कि आंसर इन 1 डेसिमल, तो मेरे ख्याल से 1.2 होना चाहिए आंसर। ओके ओके। हाँ, तो एक वो मिनट, हम मर्ज कर सबसे- रहे हैं, हिमांशी है, एक मिनट। हाँ हेलो हिमांशी। हेलो। हिमांशी, पेपर कैसा हुआ? हाँ ये सही हो गया, मेरा भी मॉडरेट था, ज्यादा हार्ड नहीं था। Okay. मतलब कुछ क्वेश्चन थे उसमें सोचना था, पर हम्म। बाकी सही था सर पेपर। मेरा अटेम्प्ट 48 है ओके ओके। 48 मार्क्स या 48 क्वेश्चंस? सर, 48 क्वेश्चन है। अरे वाह वाह, वेरी गुड हिमांशी, वेरी गुड। और वेदांत, तुम्हारा कितना है? सर, मैंने वेदांत भी है क्या कॉल पे? 35 क्वेश्चन, 35। तुम्हारा 35 अटेम्प्ट हुआ है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, 35 कैसा हुआ क्वेश्चन, सब वेदांत, आंसर। कैसा हुआ? मैंने एक्टिव नहीं किया, एक्टिव हेलो? छोड़ दिया हूँ, एक्टिव नहीं किया। इतना आसान था, सबके सब क्वेश्चन इतने आसान है, मुझे ये क्या क्वेश्चन है ये? एक बार तो ऐसा लगा, एक सिमेट्रिक का क्वेश्चन था एप्टीट्यूड में कि 2 प्लेन दे रखी, तो दोनों के बहुत एक मिरर को इन्वो करना था। और हाँ, एक वो किया मैंने। हाँ, वो एकदम आसान था। और एक इसका था एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी का, उसके Okay. अंदर वो अरे रखा था वो इंग्लिश का समझ में गाइडलाइंस नहीं आया मुझे। इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा अच्छा, ये बताओ। गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करते अच्छा, ये बताओ तो अच्छा सुनो, ये बताओ, मतलब एप्टी का पेपर इजी था, राइट? हाँ ये सर इजी था। और ओवरऑल पेपर मॉडरेट था? हाँ, ओवरऑल मॉडरेट। सबसे थोड़ा सा मतलब कुछ क्वेश्चन थे जिसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा था। हाँ। उन्होंने ना मतलब सबसे थोड़ा ठीक था लेवल, मतलब काफी सही लेवल था उसका। अच्छा। उसमें मैंने क्वेश्चन छोड़े भी है, पर जैसे कि कुछ क्वेश्चन भी थे, जैसे कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट में रखा था ना उसमें, वाइब्रेशन में, तो एक्स1 की वजह रखी है और एटा से रखी, तो एक्स3 निकालना था, x2 ने x3 निकालना था। तो
थे। ओके ओके जितना टफ था उतना इजी भी था। पेपर एक्चुअली इजी नहीं था, थोड़ा सोचने ऐसा था, हम्म। इजी नहीं बोल सकते। ओके अच्छा, मैं है ना एक क्वेश्चन में बिल्कुल दिमाग में चला, उसके अंदर क्या था ना कि हाइट के साथ अपना एक्सेलरेशन का क्या होता है, तो हमारा हाँ, सबसे ऊपर deceleration। जाता तो हाँ, उसको वो मेरा भी ग्राफ बनाना था। अच्छा अच्छा तो पहले तो ये बताओ कि स्ट्रक्चर में कॉलम से क्वेश्चन आया था? हाँ आया था ना, पर MSQ आया था। क्वेश्चन था, एक MSQ था। एक MSQ था, वेरी गुड। और वाइब्रेशन से? वाइब्रेशन से एक तो ये वाला न्यूमेरिकल था, एक स्ट्रिंग वाला था क्वेश्चन, हाँ। और वो मैंने नहीं किया है। हम्म। और एक डिक्रीमेंट वाला था। अरे वाह। और एक क्वेश्चन था, उसमें क्या था ना कि एक प्लेन को उसके साथ स्प्रिंग के साथ सीजी पे कनेक्ट करके वो सॉल्व करना था, पर मैंने वो रेखा में डाला हुआ था, पर उसको सॉल्व करने का मेरे पास टाइम नहीं बचा। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि वाइब्रेशन इलास्टिसिटी क्वेश्चन आया था? इलास्टिसिटी हाँ, ये इंटरप्रिटेशन आई थी। मैक्सिमम स्ट्रेस आया था। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। टॉर्शन बेंडिंग सर वो छोड़ो, वो वहाँ से आया था ना कि हाँ अपने अगर थिन सिलेंडर है, थिन सिलेंडर पे प्रिंसिपल स्ट्रेस एक तो लगता है वो हाँ, PT बाय 2T और दूसरा लगता है PT बाय 4T। कनेक्ट करके था कौन था। हाँ एक मिनट, वंशज भी लाइन पे है, हेलो वंशज, पेपर कैसा हुआ? तो पेपर अच्छा था, मतलब लाइक पेपर थोड़ा सा वियर्ड तरीके से था, मतलब परसेंटेज उसकी। ओके। अच्छा कितना अटेम्प्ट किया तूने? 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक्यूरेसी का अभी मेरे को आइडिया नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो सच्ची में बहुत वियर्ड तरीके से आए थे। ओके। मतलब ट्रिकी था पेपर, जितना टफ था ना उतना ही क्वेश्चन मेरा पेपर बैलेंस था ओवरऑल। मतलब पेपर बैलेंस था, जो क्वेश्चन टफ था वो एक साइड का, तो एक साइड क्वेश्चन इजी भी था। अच्छा वंशज, एप्टी कैसा हुआ? सर एप्टी बहुत इजी था, फुल मार्क्स आएंगे उसमें तो। ओके वेरी गुड। अच्छा ये बताओ हिमांशी, बताओ कि ये अपना बेंडिंग और टॉर्शन से क्वेश्चन आया था? बेंडिंग से आया था, उसके अंदर ये था ना कि टाउ निकालना था और उसका मतलब टाउ अपॉन टाउ थिन वॉइस, मतलब आपको एक हॉलो शाफ्ट दे रखा था। अच्छा। हॉलो शाफ्ट का निकालना था अपॉन 280 को, मतलब तो पूरा रेशियो निकाल के उसका आंसर देना था। ओके मतलब ये है कि अभी तक तुम जितना बताई वो सब ये था कि सब पढ़ाया था, लेकिन थोड़ा मतलब वो तो रहता ही है, थोड़ा सा तो रहता ही है। चलो पढ़ाया था, चलो बहुत बढ़िया। आपको ना सबसे में 10 वोल्ट सेशन पूरा करवाना पड़ेगा, क्योंकि 10 वोल्ट का वो वहाँ तक चले गए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू से। ओके अच्छा, मतलब वो 3 वोल्ट से ज्यादा अंदर जाके दे दिए थे। ओके मतलब अंदर दे दिए, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब आ जाओ प्रपल्शन में AFC से क्वेश्चन आया था क्या? AFC से भी था, AFC से भी था और CFC से भी था, सब। अरे वाह भाई, मतलब AFC भी था, AFT भी था और CFC भी था। CFC भी था। उसके अंदर ट्रामजेट का भी क्वेश्चन था, टर्बो फैन का भी था, टर्बो प्रॉप का भी था। अरे क्या बात है, मजा ही आ गया फिर तो, मतलब चलो बहुत बढ़िया। देख के अच्छा कुछ होना जाए ऊपर। अच्छा टर्बो फैन से क्या पूछा था? टर्बो फैन का वो वाला क्वेश्चन था, MSQ में था टर्बो फैन। ओके MSQ था। अच्छा ये बताओ कि AFC और चलो बहुत बढ़िया। AFC का न्यूमेरिकल था। हाँ अरे DFC का था यार, DFC का था वो सर, वो फाइंड करना, इंपेलर का रोटेशन फाइंड करना था। क्या फिर से रोटेशन फाइंड करना था? किसमें? RPM। अच्छा CFC में RPM निकालना था, चलो बहुत बढ़िया। और AFT में क्या निकालना था? AFC का आई थिंक नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा। AFC का नहीं था, सिर्फ CFC का ही था। अच्छा नहीं था यार, AFC का था, वो था डिग्री ऑफ रिएक्शन था हमारे पास टरबाइन है, पर तो टरबाइन के अंदर 6 ब्लेड्स है और AFC के अंदर 2 ब्लेड्स है, तो उसमें वर्क इनपुट बताना था कि कितने रेशो से होगा। ओके इक्वल रहेगा क्योंकि हमारे पास सिंगल स्पूल है और जो टरबाइन का वो एफिशिएंसी उसमें 1 दे रखी थी। ओके अच्छा बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि एरोडायनामिक्स में पोटेंशियल फोर्स आया था? एरोडायनामिक्स में से बिल्कुल एक सीधा क्वेश्चन आया था कि आपको 4 एयरफॉइल्स दे रखी थी, विस्कॉम, सिमेट्रिक, कैम्बोज और थिन, तो उसमें से बताना था कि मैक्स 0.86,
कौन सी एयरपोर्ट सबसे बेस्ट रहेगी। ओके ओके एक तो उसका ये था और एक सीएम और दिल्ली में वेरिएशन दे रखा था, ओके तो उसमें सीएल निकालना था। ओके, मतलब ये भी ठीक था। अच्छा हमको ये बताओ, पोटेंशियल फ्लो से क्वेश्चन आया था? पोटेंशियल फ्लो से पोटेंशियल फ्लो से बहुत सारे आए थे। पोटेंशियल फ्लो से काफी आया था। यूनिफॉर्म फ्लो सेंस निकालना पता नहीं क्या आया था। ओके, सर मतलब वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट था पूरे पेपर में। पोटेंशियल फ्लो का। हाँ, यस सर। पोटेंशियल फ्लो में से बस 4 क्वेश्चन तो होंगे। तो इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल फ्लो से वो लोग क्या कहते हैं, सेंजल वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब फ्रैंक एंड व्हाइट से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब लेंदी क्वेश्चन आए। नहीं सर, लेंदी नहीं था। हाँ ट्रिकी था। हाँ, एक तो एमएसक्यू था, एक एमएसक्यू था। सेंस वाला ट्रिकी था सर। उसमें पहले मेरे को लगा नहीं क्या दे रखा, तो क्या मैं ना कुछ दे रखा तो करें क्या। फिर बाद में देखा तो कुछ नहीं करना, उसमें स्ट्रेंथ सेपरेट करनी है बस। अच्छा ओके ओके ओके। हाँ, तो स्टेबिलिटी का वेटेज बहुत कम था। स्टेबिलिटी वेटेज कम था। ओके, हाँ, stability। कम तो stability कम मतलब एक ही क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन होंगे। कम मतलब स्टेबिलिटी में स्टेबिलिटी से एक ही क्वेश्चन आया था। वो ग्राफ के बेस पे ही पूछ रहे वो लोग। ओके वो भी बहुत बेसिक था। ओके ओके, हाँ, आप तो सबसे फर्स्ट पेज पर स्टेबिलिटी पे तो वो ग्राफ पढ़ाते हो। मतलब तुम ये कह रही हो कि लास्ट ईयर स्टेबिलिटी से तो क्वेश्चन था ही नहीं और इस बार सिर्फ एक क्वेश्चन था। हाँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। चलो स्टेबिलिटी पे ज्यादा भाव नहीं दे रहे। अच्छा मतलब नहीं, एक ही था, एक ही था। मतलब इतना फॉर्मूले आती है बेफालतू में। अच्छा अच्छा, मतलब ये है कि पेपर बायस्ड है इस बार भी, पेपर बायस्ड है ना स्टेबिलिटी को लेकर के। हाँ, स्टेबिलिटी का वो लेकर बायस है और सर की तरफ पूरा बायस है। और प्रोपल्शन और स्ट्रक्चर के ट्रिकी क्वेश्चन। प्रोपल्शन और स्ट्रक्चर डोमिनेटिंग था। सर नहीं सर, एयरक्राफ्ट प्रोपल्शन और एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स में ये लोग ना मतलब इजी क्वेश्चन नहीं पूछे डायरेक्ट वैल्यू, थोड़ा सोचा पड़ा है, मतलब थोड़ा ट्रिकी पार्ट पूछे। सर मैं कह रही हूँ sir. कि मतलब पेपर था ना वो प्रोपल्शन और स्ट्रक्चर की तरफ बायस था और Okay. स्टेबिलिटी तो कुछ भी नहीं थी। ओके ओके, अच्छा अच्छा। और अच्छा ये बताओ कि एरोडायनामिक्स में कोई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम था, थ्योरम से कोई कुत्ता केल्विन ये सब से नहीं था? कुत्ता जो कुत्ता से आया। सर्कुलेशन पे भी था। अच्छा हाँ कुत्ता क्या है था, फ्लो पास द एयरफॉइल। ओके ओके ओके, कुत्ता का नहीं। हाँ। अच्छा अच्छा। पेंडल से थिन लाइन थ्योरी से? या उसमें सर्कुलेशन बताना था। ओके, थिन लाइन थ्योरी से पेंडल से? सर कुछ नहीं। कुछ नहीं। कोई सा आया था सर। अच्छा अच्छा तो फ्रेंडल लिफ्टिंग लाइन वीएन डायग्राम। अच्छा, अरे वाह क्या बात है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन था। यस सर। हाँ, ये VN तो diagram में theoretical था। क्या पूछा था? सर उसमें ना वीएन डायग्राम पे जैसे हम डायग्राम बनाते हैं तो उसमें एक अल्फा था, तो मतलब उसमें था कि टेल की तरफ तो कंप्रेसिव लग रहा है और नोज की मतलब ऊपर अपर बॉडी पे टेंसाइल लग रहा है। तो बताना था कि जो एयरफॉइल है वो अपना कितने एंगल ऑफ अटैक पे होगा, मतलब हाई एंगल ऑफ अटैक नेगेटिव, हाई एंगल ऑफ अटैक या पॉजिटिव ऐसा। अरे वैसे मतलब इसका आंसर क्या था? पेपर लगभग ठीक था। नेगेटिव आएगा, हाई एंगल ऑफ अटैक नेगेटिव। ओके ओके, मतलब पेपर इजी है यार, पेपर ठीक ठाक गया है जितना बता रहे हो तुम लोग। सर मीडियम लेवल से थोड़ा सा ऊपर कहूंगा मैं तो। मॉडरेट लेवल का तो है, उसके बाद पता नहीं। नहीं हम बताएं, देखो एक्चुअली ये सारा क्वेश्चन अब तुम घर ही करोगे ना, अगले साल तैयारी के लिए सब क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे समझ में। ऐसा ही नहीं करनी अगले साल तैयारी, बहुत नहीं हाँ बिल्कुल नहीं, आई मीन टू से जब घर आ जाओगे, जब तुम लोग सीनियर बन जाओगे, जब घर आ करके नेक्स्ट बैच जब आएगी तो उनको ये क्वेश्चन इजी लगेंगे, फिर वो बोलेंगे अरे सर हाँ वंशज सर, हिमांशी मैम और वेदांत ये सर ये लोग तो इजी पेपर दिए। मेरे 5 क्वेश्चन रिव्यू में रह गया, अगर टाइम होता तो वो भी सॉल्व हो ही जाता है कुछ ना कुछ होके। अच्छा अच्छा, मतलब उतना कंफर्म नहीं है। अच्छा अच्छा। हिमांशी जी आपने कितने अटेम्प्ट करे? मैंने 48। काफी हो गए। हिमांशी का बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ वेदांत, तुम्हारी एक्यूरेसी कैसी थी? क्या सर क्या? तुम्हारी एक्यूरेसी कैसी थी? सर एक्यूरेसी मतलब स्टार्टिंग में स्लो थी, फिर लास्ट में फास्ट हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब फिर बढ़िया बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि एरोडायनामिक्स में कोई बेसिक क्वेश्चन आया था? फ्लूइड मैकेनिक्स से कोई क्वेश्चन आया था? फ्लो से, वेंचुरी मीटर से, बर्नौली थ्योरम से? वोर्टिसिटी का आया था, वो इजी था थोड़ा। ओके, बर्नौली थ्योरम से आया था, वेंचुरी से आया था? नहीं बर्नौली थ्योरम में सर कुछ एंट्रोपी करके आया था, मतलब कुछ मैथ्स में आया था कुछ। अच्छा 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 गया सर, मैथ्स फर्स्ट क्लास गया। अच्छा ये बताओ कि अभी आते हैं मैथ्स पे आते हैं। अच्छा ये बताओ कि इस क्या लिखना था? वॉटिसिटी का स्क्वायर आंसर था उसका। ओके ओके, वेरी गुड, हाँ बढ़िया बढ़िया। वॉटिसिटी का स्क्वायर 12 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मतलब तुम लोग पेपर अच्छा करके आए हो। अच्छा ये बताओ कि फ्लाइट मैकेनिक्स में आ जाते हैं। अब यहाँ से बताओ, फ्लाइट मैकेनिक्स में एकदम शुरू से बताओ कि चलो स्टेबिलिटी का तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया, अब परफॉर्मेंस में आ जाओ। बताओ कि एक्सीलरेटेड फ्लाइट से कुछ आया था? मतलब
एक्सिलरेटेड फ्लाइट से आया था, कुछ पुल अप पुल डाउन कोऑर्डिनेट? Accelerate पर जितना नहीं मेरे को याद है ना, इस ग्लाइडिंग से एक क्वेश्चन था, क्लाइंबिंग से 2 था, स्टडी लेवल से भी 2 थे। अरे वाह, वेरी गुड। मतलब नॉन एक्सिलरेटेड से 3-5 क्वेश्चन आ गए। लेकिन ट्रिकी थे वो, इजी नहीं थे। अच्छा, लेकिन हो गए सॉल्व? सर वो सॉल्व होगा, पर बहुत इजी नहीं था, लेंदी था। ओके, मैकेनिक्स लेंदी था, मतलब कुछ ऐसा परफॉर्मेंस लेंदी था। हाँ। अच्छा, मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ से आ गए थे। एक दो क्वेश्चन में आधे में आके अटक गया, इसलिए मेरे कम से कम 3-4 क्वेश्चन नहीं हुए। ओके ओके। नहीं हुए। अच्छा, तो ये बताओ कि मतलब कैसा बोलोगे, फ्लाइट मैकेनिक्स तुम लोग कैसा बोलोगे, इजी बोलोगे या मॉडरेट बोलोगे? सर मॉडरेट आएगा तो मॉडरेट, नहीं आएगा तो हार्ड है, क्योंकि लेंदी है ना सर, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। हाँ चलो, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक को इग्नोर कर देते हैं। एक क्वेश्चन था ना पहले, तो वो समझ में नहीं आया था कि क्या कहते हैं, 2 प्लेन दे रखे हैं A B, और उसमें बताना है कि ये अपना कितना क्या होगा, मतलब उनका रेशियो निकालना था। और बाकी सारे पैरामीटर्स वैसे नॉर्मल वाले पैरामीटर्स दे रखे थे। तो पहले तो मतलब नॉलेज वगैरह सब कुछ है, वो कुछ नहीं हुआ। फिर जा रहा है कि ये CP से सॉल्व होगा, और जब तक टाइम नहीं बचा था। अच्छा। तो मतलब फ्लाइट मैकेनिक्स से पेपर मॉडरेट था धीरे करके। हाँ, ये मतलब अच्छा, अब रॉकेट में आ जाओ। रॉकेट में बताओ। सर एक आया था, बहुत एक ही आया था, इजी आया था। इजी था। आंसर क्या था? आंसर याद नहीं आ रहा। उसमें आई थिंक हम लोग को बैलिस्टिक कोई मिसाइल थी, जो कुछ ऐसा क्वेश्चन था। हाँ, तो जिसमें ISP सेम था, वो सब। ओके। तो वो मतलब इजी था ले करके। यस, वो 0.5 VA से 0.5 dB आ रहा था। अच्छा, ओके। और ये बताओ कि स्पेस मैकेनिक्स से, मतलब ऑटो मैकेनिक्स से 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन, कांट बिलीव। और सर न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल नहीं सर। 3 न्यूमेरिकल था। मतलब क्या 3 नंबर के थे या कितने नंबर के आए फिर? सिंगल थे क्या? सर मेरे ख्याल से 2 या 3 2 थे। नंबर के एक, हाँ 2 नंबर के दोनों थे। तो एक में तो हमें वो निकालना था, क्या कहते हैं इसका, वेलोसिटी, मतलब टाइम पीरियड दे रखा है, और वो H निकालनी है, हाइट। अच्छा। और दूसरे में हमें वो एस्केप वेलोसिटी निकालनी थी। अच्छा, ये सारा क्वेश्चन हो गया ना? सर मेरा रह गया। तुम्हारा रह गया, और वैसे तुम्हारा हुआ? मेरा रिव्यू में था ये, और मेरा बिल्कुल टाइम नहीं बता। अच्छा, वंशज तुम्हारा हुआ स्पेस डायनामिक्स? सर उसमें से एक क्वेश्चन करा मैंने, वही एग्जिट वेलोसिटी वाला। दूसरे का टाइम पीरियड का फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, मैं बाद में रिव्यू के लिए छोड़ दिया वो। अच्छा, और वेदांत तुम्हारा हुआ? सेम। अच्छा, लग रहा है वेदांत चला गया। वेदांत कॉल पे नहीं हो? अच्छा, चलो वेदांत चला गया। हाँ, उसको वो पकड़नी थी। अच्छा चलो ठीक है। अब ये बताओ कि मतलब स्पेस और रॉकेट से भी प्रॉब्लम इजी ही आया था, राइट? यस सर, मैथमेटिक्स बहुत डिसअपॉइंटिंग था। हाँ, अब मैथ पे आ जाते हैं। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था, कुछ खास क्वेश्चन ही नहीं आए स्कोरिंग वाले मैथ से। डिफरेंट। यस सर। अच्छा, तो मैथ से वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन थे? मैथ से बताओ, वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी नहीं था। नहीं, वेक्टर कैलकुलस एक आया, एक भी नहीं, एक आया था। वेक्टर कैलकुलस था क्वेश्चन। वैसा सर नहीं आया था, सिंपल वेक्टर रूल्स पे आया था, वो परपेंडिकुलर होंगे वेक्टर्स या क्या होंगे वैसे। अच्छा, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन था इंटीग्रेशन से? कुछ नहीं सर। मतलब कैलकुलस के क्वेश्चन नहीं थे? कुछ नहीं। कोई भी एरिया अंडर कर्व या इंटरसेक्शन ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं। अच्छा, कोई क्वेश्चन था ज्योमेट्री पर था कोई क्वेश्चन? कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये बताओ कि हम लोग का ये जो पोर्शन आता है जिसमें न्यूमेरिकल मेथड वाला, जिसको कहते हैं न्यूमेरिकल मेथड, नहीं, उससे क्वेश्चन नहीं आया था? कुछ नहीं आया। लाप्लास से भी नहीं आया। अच्छा, यहाँ से भी नहीं आया। सिर्फ एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और एक नॉर्मल वो D1 इक्वल्स टू D1 - 1, जिसपे हम लोग को वो बनाना होता है। तो फॉर्म, वो नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो वाला था बस, डिफरेंशियल इक्वेशन से एक ढंग का। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से एक पेट क्वेश्चन जैसा कुछ था बस? ये सर, और एक पार्शियल पे था, वो तो समझ ही नहीं आया। हाँ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था, एन कंडीशन दे रखी थी, और दूसरे एन कंडीशन पर पूछ रहे थे, यही था बस। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या था? 2 डिग्री था कि 1 डिग्री था? 2 डिग्री। अच्छा। और सर वो बहुत लेंदी था, क्योंकि डेसिमल में पूरा था वो। जैसे x को 0 कर देते हैं ना सर, उसमें x की वैल्यू दे रखी थी, जिसकी वजह से पूरा e को कैलकुलेट करना पड़ा, वो बहुत लेंदी हो गया था। कोई ऐसा क्वेश्चन था जो लगा कि यार ये 11th 12th का था मैथ में? हाँ, उसका था मैट्रिक्स का। हाँ, ये सर मैट्रिक्स का। वो निकाल, अल्फा की वैल्यू निकालनी थी उसके अंदर, और उसका सोल्यूशन कह रहे थे कि यूनिक सोल्यूशन है। तो मैट्रिक्स मतलब नॉन ट्रिवियल था? अच्छा, ये बताओ, तो मैट्रिक्स से जो पूरा क्वेश्चन था वो कितने थे? सर एक
x इज इक्वल टू 0 वाली मैट्रिक्स है ना, तो उसमें से नॉन ट्रिवियल यानी कि सिंगल सोल्यूशन। हाँ तो मतलब ये कि तुम्हारे पास एक ही मैट्रिक्स से क्वेश्चन थे क्या? हाँ एक ही था मैट्रिक्स से, पूरी मैट्रिक्स है ना, रैंक से क्वेश्चन आया ना कहीं और से। अच्छा मतलब मैट्रिक्स से इजी क्वेश्चन आया था। अच्छा मतलब मैथ का पेपर थोड़ा वियर्ड गया। यस सर। ओके हाँ सर मैथ्स तो मतलब एकदम थोड़ा वियर्ड गया। सर मतलब अगर पुराने पेपर्स का ट्रेंड देखें या कुछ पैटर्न देखें तो कुछ भी सेम नहीं था। कुछ भी सेम नहीं था। Yes, Okay. sir, वो सारा Yes, sir. उसकी वेटेज सब कुछ हिला दिया उन्होंने। Okay. कुछ मतलब बहुत वियर्ड सेंस में पेपर बना था और ट्रिकी Okay. बना था। ओके 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 जब बस में पेपर ऐसा था कि तुम लोग के पास एक सिलेबस है, बस इसको पढ़ते जाओ, ये उम्मीद मत रखो कि कौन सी सिलेबस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. बस पढ़ते रहो। अच्छा मतलब ये सर का पेपर कुछ ऐसा था। हाँ और मैथ सबसे वियर्ड था। मैथ बहुत वियर्ड था सर। अच्छा एप्टी में कहाँ से क्या क्वेश्चन? मतलब एप्टी बहुत इजी था। एप्टी इजी था ले करके। ओके एप्टी सर कुछ था ही नहीं, हाँ। ऐसा लगा था वो तो नॉर्मल आप कोई बैठे बैठे भी आप कर लो। 20 मिनट में भी नहीं हुआ, 20 मिनट से भी कम टाइम लिया था एप्टीट्यूड में। अच्छा तो इसका देखो सीधा सा मतलब है कि अगर एप्टी में वो आपको इजी क्वेश्चन दे ही दे रहे हैं, 15 नंबर तो वहां से मिल ही गए, तो कहीं ना कहीं तो कम्प्रोमाइज करेंगे ही। सर बहुत गंदा कॉम्प्रोमाइज हुआ सर ये तो। मतलब ये तो इसका मतलब तुम लोग मैथ में तो क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो कि मैथ में क्वेश्चन कहाँ से आए थे। हाँ मैथ में तो क्वेश्चन सही बता ही बोल नहीं पा रहे थे। हो। अच्छा मतलब ले दे करके तुम मैथ को कैसा बोलोगे, मैथ बेकार आया था या टफ था या समझ में नहीं आ रहा था? सर मैथ इजी था लेकिन लाइक बहुत बेकार easy था, मतलब बहुत बेकार हिंदी था। का सर। मैं इससे अगर कोई कोर सब्जेक्ट पूरा 1 महीना छोड़ के सिर्फ मैथ्स करे ना, तो तब उसका मैथ्स वहाँ पे एक बार में सोल्व होगा, ऐसा Okay. मैथ्स था। ओके 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 लेंदी था सर। तो मतलब यूनिवर्सिटी लेवल का मैथ था क्या? हाँ नीचे उससे भी थोड़ा नीचे ही था सर अच्छा अच्छा मैथ्स तो। सिर्फ पीडी थोड़ा सा वो सर दिक्कत दे रहा था क्योंकि उसको लोग नॉर्मली करते भी नहीं है, तो सर एक वही थोड़ा सा टफ बोलेंगे, बाकी तो मैथ से कुछ आया ही नहीं। अच्छा तो मतलब मैथ का वेटेज कितना था? मार्क्स बताओ, मैथ में कितने मार्क्स थे? लगभग 8 नंबर 10 नंबर थे? 8 से भी कम था सर, 6-7। अच्छा मतलब मैथ से शायद। क्वेश्चन ही कम थे। यस सर, क्वेश्चन भी कम थे। ओके 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 मतलब ले दे कि ओवरऑल तुम्हारा प्रोफेशनल स्ट्रक्चर अगर अच्छा हो गया तो एग्जाम तो निकल जाएगा। हाँ यस सर। अच्छा अच्छा एरोडायनेमिक्स के बहुत वैसे क्वेश्चन आए थे लाइक थ्योरेटिकल, और कैलकुलेटिव नहीं थे वो ज्यादा। अच्छा नहीं तो वहाँ टाइम बचता? किसका? नहीं सर वहाँ टाइम पे नहीं टाइम बचा, मतलब उतना सोचना पड़ रहा था ना उस question अच्छा सोचना में। पड़ रहा था। और फ्लाइट मैकेनिक्स में हाँ। टाइम बचता था तुम्हारा? तो फ्लाइट मैकेनिक्स भी लेंदी था, मतलब काफी लेंदी अप्रोच। अच्छा थर्मो का बेसिक क्वेश्चन था क्या? थर्मो का एक भी बेसिक क्वेश्चन? हाँ सर एक था सीडी नोजल में हीट इनलेट हो रही है, अच्छा और हाँ, उसमें सर, वो- बताना था कि प्रॉपर्टीज वेरिएशन क्या होगा। मतलब बेसिक क्वेश्चन था, एकदम बेसिक। हाँ सर रेले फ्लो पे था वो तो, लाइक टच से आप पास करा रहे हो, उसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो अच्छा फिर हाँ उसका तो क्या आते होगा? हैं गैस डायनामिक्स पे। क्या एनएसडब्ल्यू से कोई क्वेश्चन था क्या? किस पे सर? सर Normal shock wave? वेव से था। कुछ नहीं था, नॉर्मल शॉक से नहीं था क्वेश्चन? कोई भी नहीं। ऑब्लिक से था? यस सर। एक्सपेंशन से? Oblique से था कि एक ग्राम एक्सपेंशन से था? होगी वो। कैलकुलेटिव नहीं था सर। ऑब्लिक शॉक वेव से था ना, एक रैम्प दे रखा था, तो हाँ। उसमें एमएसक्यू पूछा, एमसीक्यू एमएसक्यू था। एक्सपेंशन से था? एक्सपेंशन से था? नहीं सर, Oblique एक्सपेंशन shock पे ऑब्लिक शॉक अच्छा और एक्सपेंशन से क्वेश्चन था क्या? कुछ नहीं। नहीं मूविंग शॉक वेव से क्वेश्चन? नो। रिले नहीं। फ्लो, फैन फ्लो? यस सर, उससे था। हाँ मतलब सर आप उसको डक्ट मान लो या रिले फ्लो मान लो, बात सेम है, मतलब सीडी Okay. नोजल मान लो, सॉरी Okay, okay. डाइवर्जेंट नोजल मान लो या फिर रिले फ्लो मान लो। अच्छा मतलब नोजल से क्वेश्चन आया हुआ था? यस सर, उसमें डाइवर्जिंग था और हीट ऐड कर दे रहे divergent। थे बीच में, और सुपरसोनिक फ्लो था, तो बस प्रॉपर्टीज देखनी थी अगर वो कुछ कुछ टर्म्स को कांस्टेंट रख के बाकी सब पे क्या होगा। ओके 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 मतलब यार यार उसका आंसर क्या था? उसमें प्रेशर और डेंसिटी इंक्रीज हो रहे थे अगर बाकी सारे टर्म्स को कांस्टेंट रखते हैं तो। ओके ओके क्योंकि I ओके think वही था। मतलब पेपर हिमांशी तुमको कैसा लग रहा है देखकर के? खुशी फील हो रही है? अच्छा लग रहा है? डाउन तो नहीं लग रहा? पता नहीं चाहिए तो रिजल्ट बताएगा। मतलब फिलहाल 48 का अटेम्प्ट अच्छा माना जाता है। हाँ सर मतलब अटेम्प्ट तो सही है, बस उसके अंदर एक्यूरेसी अगर ठीक हो तो मतलब सही हो जाएगा। सेम वही डर है सर, अटेम्प्ट तो करें लेकिन एक्यूरेसी के ऊपर है। ये 41 का अटेम्प्ट भी काफी अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि 48 में तुम्हारा मतलब लगभग 48 में तुम्हारा लगभग 50 नंबर प्लस जाता है। ठीक है? सर सही तो होएगा तब। हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ याद है? सर क्वेश्चन अगर लाइक याद मतलब तो लाइक फिजिकल वो याद है, मतलब क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या थे, वैल्यूज तक थोड़ी थोड़ी याद है। ओके 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 ओके
ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ठीक है, ओवरऑल पेपर मॉडरेट से ऊपर ही करेंगे मॉडरेट से ऊपर यार देखो, अगर FT 15 का इजी दे दिए वो, मॉडरेट से हल्का सा ऊपर। सर। एप्टी को हटा दें अगर हाँ। क्योंकि तो बाकी पूरे कोर को मॉडरेट से ऊपर ही करेंगे सर। ओके ओके हेलो, ओके ओके, हाँ हाँ, इसकी वजह से शायद से थोड़ा इन्फ्लेशन हो सकता है वो रैंक वर्सेस मार्क्स में, चलो चलो बहुत बढ़िया, मतलब घटेगा वो तो। ठीक है। तो मतलब तुमको क्या लगा कि FT को कैसे करना है, पूरा ओवरऑल FT करके जाना है या इस बार का कैसा तुमको लगा? सर वो तो वो तो बगल वाले का जो एप्टी होता है सर वो भी सेम था, तो वो आपस में मिल मिल के हम लोगों ने पूरा खेल लिया। अरे बाप रे सीरियसली? चलो तो ठीक जो है, किसी को नहीं आया वो उसने बता चलो हंसी मजाक अपनी जगह है ये सारी बातें यूट्यूब पे जाएंगी तो थोड़ा सा चलो ठीक है, तो ठीक है। अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ, एकदम सावधानी से घर जाओ, अच्छे से घर जाओ, फिर रात में एक बार फिर से कॉल पे बात करते हैं, ठीक है? और जो क्वेश्चन याद रहेगा उसको कागज पे लिख लेना, ठीक है? ओके सर। जिस क्वेश्चन में डाउट हुआ कागज पे लिख लेना, उसको रात में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या सही क्या गलत है। ठीक है बच्चों, फिर ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच। आप लोगों का भविष्य उज्जवल है, आप लोग IIT जा रहे हैं, डैम श्योर। अरे सर अभी कुछ नहीं कह सकते सर, बहुत डाउट है। डेफिनेटली आप लोग IIT जा रहे हैं, पक्का IIT जा रहे हैं। चलिए फिर ठीक है, हम कॉल ड्रॉप करते हैं। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू गाइस।